Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Good evening, listeners. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Sarabjit Kaur with my co-anchor Sonu Sood. धन्यवाद सरबजीत। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित है आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे। उदयन, नमस्कार। मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और अब हेडलाइंस के साथ है सरबजीत कौर। India's trade deficit down to $21.94 billion in December on a monthly basis. Benchmark domestic indices end with modest gains. Sensex adds 224 points. Nifty closes above 23,200. And global crude oil prices rose today. Brent crude trades at $80.18 per barrel. भारत का व्यापार घाटा मासिक आधार पर कम होकर दिसंबर में 21.94 अरब डॉलर पर आ गया। प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक मामूली बढ़त के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 224 अंकों की तेजी में रहा। निफ्टी 23,200 के ऊपर रहा। और कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में आई बढ़त। ब्रेंट क्रूड $80.18 प्रति बैरल पर आया। And listeners, now the details of the news headlines. India's trade deficit stood at $21.94 billion in December 2024, down from November's revised $32.84 billion. Ministry of Commerce and Industry data showed that merchandise exports in December rose to $38.01 billion from November's $32.11 billion, while imports fell to $59.95 billion from the $64.95 billion in November. However, the trade gap widened from $18.76 billion in December 2023. The data showed that merchandise goods exports also dropped on an annual basis from $38.39 billion in December 2023 to $38.01 in previous month. Imports were also up from $57.15 billion in December 2023. The government had earlier reported in December last year that India's trade deficit widened to $37.84 billion, but the number was revised to $32.84 billion after the gold imports revision. The government revised November's data, slashing gold import estimates by a record $5 billion, reducing it from $14.86 billion to $9.84 billion. Mr. Udayan Ray, we'd like to have your view on this. These, trade deficit figures, what do they show about the Indian economy's picture and especially the sentiment in the stock market? Well, the adjustment that you're talking about is a statistical adjustment, as I can understand. Those are very large gold import that has been corrected, and every year, every month that doesn't happen. So much of, there's around the festive time, there is a little bit of spike that happens. So that has got corrected. But the larger trend actually remains, which is our services exports are kind of doing better than our merchandise exports. So that trend continues. And there could be a wide variety of reasons for that. I'm sure if you little bit of fall that has happened in exports, you will see things like if you disaggregate it to destination, you might see that, maybe some exports to little bit of that can be attributed to the slowdown in China. Right. Because we do a lot of trade, we do a lot of exports to them as well. So those are the smaller things that could have happened. Then we know in Red Sea
there's a kind of disruption that's going on, that's hiked up freight charges, insurance through that route. So these things actually, may end up influencing. But there's no denying the fact that apart from India, which is growing still at a pretty healthy clip, despite some of the not so flattering headlines, the story is not the same in other countries, bar US. So we can expect merchandise exports to be under pressure for some time to come, and especially with the new US administration coming in. उदयन, अगर हम मंथ ऑन मंथ की फिगर्स देखें तो ट्रेड डेफिसिट में खासी गिरावट हुई है, विच इज अ गुड न्यूज. $32.84 बिलियन था नवंबर में, एंड दिसंबर में इट हैज बीन रजिस्टर्ड एज $21.94 बिलियन. एंड अगर हम एक्सपोर्ट्स पर भी नजर डालें तो मंथ ऑन मंथ 15.5% की मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में बढ़त आई है. सो आपको लगता है कि जो ट्रेंड है, आप जैसा आप कह रहे हैं, ईयर ऑन ईयर डेफिनेटली थोड़ा सा नीचे आई है फिगर्स, बट अगर हम मंथ ऑन मंथ देखें, सीक्वेंशियल बेसिस पे इम्प्रूवमेंट हुआ है. सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे जैसे थिंग्स विल सेटल डाउन, जैसे आप कह रहे हैं कि अमेरिका में रजीम चेंज है, तो उसके बाद की जो पिक्चर है जो बदलेगी, जब थिंग्स स्टेबलाइज होंगी तो हम आशा कर सकते हैं कि हमारा जो भी पुश दे रही है सरकार, मेक इन इंडिया, एक्सपोर्ट्स पर भी जो स्पेशल पुश दिया जा रहा है, उससे ये जो अपवर्ड ट्रेंड है सीक्वेंशियली मंथ ऑन मंथ ये कंटिन्यू करेगा. देखिए, वो जो पिक्चर है वो लेयर्ड रहेगा, क्योंकि देखिए अगर आप निर्यात भी करते हैं तब भी आप इंपोर्टेड कुछ सामान लेके निर्यात करते हैं. कई बार आप कच्चा माल ही निर्यात कर रहे हैं, सो सीधा आप मिनरल्स कर रहे हैं, तो उसका पिक्चर थोड़ा सा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में लेयर्ड जरूर रहेगा. पर ये अगर आप जो आपने अभी आंकड़े पढ़े उसमें भी आप देख सकते हैं कि अगर एक्सपोर्ट जितना घटा, इंपोर्ट्स उसके वनस्पत ज्यादा घटा है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई भी ये कहेगा कि ये बैलेंस ऑफ ट्रेड के हिसाब से ये एक पॉजिटिव साइन है. पर हमें ये भी याद रखना पड़ेगा, कई बुनियादी चीजें जो हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं, तो ये पिक्चर उतना क्लियर कट नहीं है. पर ट्रेड डेफिसिट जितना कम हो, मतलब थंब रूल तो ये है, उतना बेहतर आपकी करेंसी के लिए हो जाता है, आपके पास उतना फॉरेक्स हो जाता है, जिससे आपके पास क्वेश्चन होता है और आप अपने जो रिजर्व्स होता है उसमें इंटरवेंशन कर सकते हैं, अपने करेंसी को स्टेबल रख सकते हैं. पर ये जो विजडम्स हैं वो इस करंट सिनेरियो में वो उतना काम नहीं आ रहा है, क्योंकि जिसके बारे में हम आपने जाहिर चर्चा की होंगी. तो फ्यूचर पे चैलेंजेस क्या हैं? फ्यूचर में सोनू, मेरे हिसाब से तकरीबन हो सकता है मेरा अंदाजा गलत हो, ये सिर्फ व्यक्तिगत एक अंदाजा है कि तकरीबन 5-6 महीने मुझे लगता है कि हमारी जो करेंसी है, मतलब ट्रेड प्लस करेंसी, दोनों ही प्रेशर में रहेंगे. सिंपली बिकॉज अमेरिका में जो टैरिफ्स के बारे में बातचीत हो रही है उसके वजह से एक तो डॉलर में हार्डनिंग की अप्रिसिएशन की उम्मीद की जा रही है, और ये कई बार क्या होता है, ये वन टाइम मूवमेंट्स होते हैं कि एक बार आपने कर दिया फिर पूरा जो सिस्टम है वो एडजस्ट करने लग जाता है. तो कितना टाइम लगेगा एडजस्ट करने? जी, तो अगर दाम बढ़े तो फिर वहां पे अमेरिका के जो ग्राहक हैं वो एडजस्ट करेंगे, बाकी कंपटीशन एडजस्ट करेगी, सब एडजस्ट करेंगे. ये ऐसा नहीं कि बार बार बढ़ रहा है, वो एक बार बढ़ता है फिर एडजस्ट करता है पूरा सिस्टम. तो वो एडजस्ट जब हो जाएगा या होने लग जाएगा तो तब क्या होगा कि उसके बाद से आप जो रिजल्ट्स होंगे, हम जो नीतियों के बारे में आप कह रहे हैं, पॉलिसीज जो पुश हैं, वो तब कारगर होने लगेंगे, क्योंकि जब एक डिसरप्शन आता है फिर तो पूरा सिस्टम एडजस्ट करता है. ऑलरेडी हमने देखा है, जैसे मोबाइल फोन्स में हमने देखा है कि दे बिकम एक्सपोर्टर्स. सो इस तरह की जो सक्सेस स्टोरीज हैं, देखिए उसमें वो तो है तो अपनी जगह में, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. और वो मोबाइल फोन इज अ ब्रिलियंट एग्जांपल ऑफ कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर हम जा रहे हैं, जो कंपनी के बारे में आप बात कर रहे हैं. पर सुनो, उसमें चैलेंज ये होता है, मैन्युफैक्चरिंग में चैलेंज ये होता है, जितना आप हायर वैल्यू एडेड एरियाज में जाते हैं वहां पे आपको स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है और आपकी रिक्वायरमेंट्स भी उस हिसाब से होती है. ये कई बार ना रातों रात नहीं आ
आ पाती है। कुछ चीजों में मूवमेंट करने में दिक्कत नहीं होती है, कुछ चीजों में आपको वक्त लगेगा। जो हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग होगी वो उसके लिए आपको स्किल्ड लेबर चाहिए, आपको पावर चाहिए, वाटर सप्लाई चाहिए, लेबर के लॉज चाहिए, तो वो सब इकट्ठा एक इकोसिस्टम होता है, बन रहा है। पर मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो रातों रात आप नहीं कर पाते। सर्विसेज में आपके अपफ्रंट कॉस्ट उतने नहीं होते, तो आप इसलिए पाएंगे कि जो आपके जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं वहां पे जो इनिशियल पीरियड है वो कम होता है, जेस्टेशन पीरियड। तो ये कुछ चीजें हैं, बट आप भारत जैसे बड़ा जो इकोनॉमी है और जितना एम्बिशन है, जितना बड़ा हमारा साइज है, हमको हर चैलेंज को लेना चाहिए, क्योंकि बड़ा देश नहीं करेगा तो और कौन करेगा। एब्सोल्युटली। आइए रुक करते हैं शेयर बाजारों का। प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक आज लगातार दूसरे सत्र बढ़त पर बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स लगभग 0.3% की वृद्धि से 224 अंक बढ़कर 76,724 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.16% की बढ़त से 37 अंक ऊपर 23,213 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार में भी रुख सकारात्मक था। मिड कैप सूचकांक 0.11% की बढ़त में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.3% से अधिक वृद्धि दर्ज हुई। Benchmark domestic equity indices today ended with modest gains for second straight session. The 30-share index at Bombay Stock Exchange Sensex advanced 224 points, almost 0.3%, to close at 76,724. Similarly, the National Stock Exchange Nifty 50 added 37 points, or 0.16%, to settle at 23,213. The broader market indices at BSE ended in positive territory. The mid-cap index added 0.11% and the small-cap index increased over 0.3%. In the Sensex index, 18 out of 30 companies logged gains. Among the top gainers, Zomato increased over 4.3%, NTPC surged over 3.3%, and Power Grid advanced around 3%. Meanwhile, in the top laggards, Mahindra & Mahindra fell over 2.9%, Bajaj Financial Services lost over 2.2%, and Bajaj Finance dropped 2.16%. In sectoral indices at the BSE, 16 out of 20 sectors ended in positive territory. Among top gainers, utilities advanced over 2.4%, power gained more than 1.7%, and realty added over 1.5%. Conversely, in the top laggards, healthcare shed 1.2%, auto dropped over 0.5%, and oil and gas fell 0.28%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,150 companies advanced and 1,806 declined, while 108 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 24 companies hit their 52-week high, while 85 hit their 52-week low. और रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 27 पैसे की मजबूती से 86 रुपए 36 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 109.04 पर था। उदयन, आज लगातार दूसरा दिन है जब हमने तेजी देखी है बाजार में। जो 4 दिन की लगातार एक गिरावट चल रही थी वो स्नैप हुई है। क्या लगता है आपको अभी ओवरऑल बाजार की क्या स्थिति है? कौन से फैक्टर्स आपको लगता है सबसे ज्यादा हावी हैं और आगे क्या आपको दिखाई दे रहा है प्रॉस्पेक्ट? देखिए, सारे जो नजरें हैं वो अमेरिका की तरफ ही हैं, और सिंपली बिकॉज बाकी अमेरिका की जो इकोनॉमी का साइज है वो बाकियों से इतना ज्यादा बड़ा है, तो वहां पे कुछ भी होता है उसका एक पूरा डेमोन्स्ट्रेशन या डोमिनो इफेक्ट वर्ल्ड ओवर होता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो तकरीबन हमसे वो 9 गुना तकरीबन 8 गुना के आसपास साइज का बड़ा इकोनॉमी है। तो अगर इतना बड़ा इकोनॉमी होगा वहां पे कोई चेंज आएगा, वहां पे वो उसकी तरफ नजरें हैं। आज अगर कही जाए कुछ ही घंटों में अमेरिका में मुद्रास्फीति की जो है डेटा है, आंकड़े निकलेंगे और उससे मार्केट थोड़े से और क्यूज लेगा। जैसे पिछले हफ्ते अमेरिका में जॉब्स रिपोर्ट आए थे और वो काफी स्टिफ थे, मतलब
अच्छा उम्मीद से ज्यादा बेहतर आया। पर ये थोड़ा सा आयरॉनिकल है कि वहां जब अच्छे इकोनॉमिक फिगर्स आते हैं तो स्टॉक मार्केट्स जो है जिटरी हो जाती है कि शायद रेट कट साइकिल धीमी पड़ जाएगी। वो इसलिए क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स सोनू वो इट्स अ परवर्स सॉर्ट ऑफ टेंडेंसी। तो क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स ने ये पंट लगाया था, ये मान के चले, सेकंड गेस किया था कि 2025 में कई सारे रेट कट्स होंगे, पर हर बार अच्छे आंकड़े आते हैं, हर बार उन उम्मीदों के ऊपर एक और बाल्टी से पानी गिरता है, तो कोल्ड वाटर गिर रहा है। तो और उसी के चलते चारों तरफ से आपका सारे जो आपके मार्केट्स हैं, सिर्फ इक्विटी मार्केट्स नहीं है, बॉन्ड मार्केट्स हैं, दूसरे मार्केट्स हैं, डेट मार्केट्स हैं, वो सारे इफेक्ट होते हैं। तो ये आज जो है, आज फिर वो आंकड़ा निकलेगा। अगर वो इन्फ्लेशन स्टबर्न दिखा तो वो पिछले हफ्ते की जॉब्स रिपोर्ट के साथ देखा जाएगा। और फिर अगले जो क्यूज आएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्यूज आएंगे, वो ये आएंगे क्योंकि नए आने वाले राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि वो कुछ चीजें करेंगे। तो जब आप इलेक्शन लड़ते हैं कई चीजें बोली जाती हैं, और इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे पहले दिन या पहले 7 दिन किए जाए, पर उसके उस तरफ लोगों की नजरें होंगी। और जैसे कि मैंने कहा कि कुछ महीने लग जाएंगे, क्योंकि ये इतने डिसरप्टिव अनाउंसमेंट्स हैं और इतना महत्वपूर्ण देश है कि उसका इफेक्ट, एक रिपल जो उसके जो सेस्मिक इफेक्ट्स हैं, वो चारों तरफ फील किए। शायद अगले मंडे को ही वो चार्ज लेंगे, तो अगला वीक काफी एक इम्पोर्टेंट। जी, वो जो वादे किए गए थे, जो कहा गया था, उसका क्या नतीजा निकलेगा, सारी की सारी चीजें तो हो नहीं सकती। पर एक बात कही गई थी टैरिफ्स के बारे में। तो टैरिफ्स अगर आप लगाते हैं तो वो इमीडिएटली इफेक्ट नहीं होता है, उसका असर आने में आपको थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा। बस पूरा जो सिस्टम है, ग्लोबल सिस्टम, क्योंकि सबसे बड़ी मंडी एक्सपोर्ट मार्केट तो यूएस ही है। तो आप सोचिए कि हजारों लाखों जो कारखाने हैं, जो चीजें बना रही हैं, एक मंडी की तरफ जाती है, वो उनको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। वो आपके स्टॉक मार्केट्स में, हर मार्केट में रिफ्लेक्ट होगा। एक और चीज है जो टग ऑफ वॉर चल रही है एफआईआईज के बीच और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बीच। इवन ऑन मंडे जब हमने काफी गिरावट देखी बाजार में, एफआईआईज नेट सेलर्स थे लगभग 5,000 करोड़ के, और डीआईआईज नेट बायर्स थे 8,000 करोड़ से ज्यादा के। सो आपको लगता है कि ये जो समीकरण है, ये जो एक मजबूती है डीआईआईज की तरफ से, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की तरफ से, वो बाजार को बल देती रहेगी और संभालती रहेगी? बिल्कुल, अगर वो ना होते तो फिर ये हम सोच भी नहीं सकते कि क्या होता। तो पर ये अब आदत पड़ जाती, जब आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं, रेगुलरली नियमित रूप से निवेश करते हैं, तो ये दिक्कतें आती नहीं है और ये बना के रखेगी। पर हाँ, और सुनो, इम्पोर्टेंट बात ये अगर स्ट्रेट स्टॉक्स में होता तो दिक्कत होती, क्योंकि रेगुलर फ्लोज जा रहे थ्रू म्यूचुअल फंड्स एंड अदर रूट्स। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जब आदत पड़ी रहती, छोटे छोटे अमाउंट्स में आप करते हैं, एकदम से आप विड्रॉ नहीं करते हैं, और तो ये शायद सेफ्टी मैकेनिज्म बिल्कुल। तो वो एक जो है, वो एक फ्लोर तैयार कर देती है। जब भी डाउनवर्ड मूव होता है, एक फ्लोर तैयार कर देती है। आइए अब चलते हैं अगली खबर की ओर। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने मेक इन इंडिया पहल को प्रमुख रणनीति बताया है। ये पहल भारत को एक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण केंद्र के रूप में तैयार करने में सहायता कर रही है। श्री सिंह ने जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हीम टेक्सटाइल 2025 में भारत मंडप का उद्घाटन किया। उन्होंने पिछले 10 वर्षों में भारत की विकास यात्रा और बढ़ते प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर बल दिया। श्री गिरिराज ने मशीनरी और उपकरण निर्माता संघ से भेंट कर भारत के कपड़ा क्षेत्र के साथ जुड़ाव मजबूत करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जर्मनी के निर्माताओं के भारत में निवेश और मशीनरी का उत्पादन करने से दोनों देशों को फायदा होगा। हालांकि हम हर एक सेक्टर में ही मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन जो टेक्सटाइल सेक्टर है उससे हमारी पुरानी स्ट्रेंथ रही है। सो आपको लगता है कि इसमें हम फिर से एक लीडर की तरफ बढ़ने की और जो स्टेप्स ले रहे हैं वो हेल्प करेंगे? देखिए, हमारे पास रोल मॉडल्स हैं, जैसे वियतनाम है, बांग्लादेश है। उनकी कामयाबी के पीछे कुछ कारण हैं, स्पेशली वियतनाम के, और वहां से हम सीख सकते हैं, वहां से हम समझ सकते हैं। और क्योंकि आप, जैसे कि आपने कहा कि पीछे हमारे एक स्ट्रेंथ थी, फिर अनफॉर्चुनेटली कुछ मिस्टेक्स या प्रॉब्लम्स आ गई, उनसे हमने सीख सकते हैं, दूसरे देशों से सीख सकते हैं, और दोबारा हम
पेनिट्रेट क्यों नहीं कर सकते हैं? ये तो हमें अप्लाई करने वाली बात है. And Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis will inaugurate the National Startup Day 2025 at Geo World Center in Mumbai on Thursday. The day-long event, organized by Maharashtra State Innovation Society, will not only commemorate Maharashtra's achievements in the startup ecosystem, but also set the stage for future collaborations and innovations. Udayan, in your view, how do these initiatives give a boost to the youth of the country? Well, they are very, very important. Simply because long back, many decades back, people used to call Britain a nation of shopkeepers. Right. So entrepreneurship at that point was shopkeeping because large industries were there. But the kind of youth that is there that is entering the workforce, formal large players getting into who are increasingly automating, digitizing their whether it's manufacturing or anything, they will not be able to absorb that kind of manpower. So therefore, in terms of employment, wealth generating potential, because startups, if they do well, they get listed and they on stock exchange, and they can generate wealth for investors, and that the whole successful startup also pulls a whole host of things. There will be insurance, there will be loans, there will be what have you. So there's a whole behind every single successful enterprise which is starting ground up. Right. What it does is it also creates that whole chain of economic activity. Last but not the least, a large company will always find it risky to get into new and emerging areas. Yes. A startup will take that risk. And so there are whole swaths of new areas that are coming up where India can come in, and young, smart, risk-taking individuals can get in and penetrate and create leadership positions. Things like satellites, we are seeing that already in space startups, defense startups. The kind of work that's happening in India is so exciting that it gives me a lot of hope that some of the things that I was just talking about do get illustrated out there. In some more positive news, a high-level delegation from Assam, led by Assam Cultural Affairs Minister Bimal Bora, arrived in the UAE for a 4-day visit to showcase the state's investment potential ahead of the Advantage Assam 2.0 summit scheduled for February 25th to 26th, 2025 in Guwahati. During the Advantage Assam Dubai Investor Meet today, Minister Bora said that Assam stands at the cusp of unprecedented growth, offering unique opportunities across sectors from traditional industries to cutting-edge technology. The minister added that they are actively seeking UAE private sector investment, particularly in infrastructure projects that promise to transform Assam's economic landscape while offering profitable opportunities for investors. Udayan, I see as the rise of the Northeast as an investment hub. What's your comment on this? Well, some of the challenges, have been there in the Northeast, people, far-flung areas, right. Connectivity. Difficult terrain. Yes, but because now we are becoming so good in the digital sphere. Of course, everything can't be digital. Right. But small entrepreneurs getting connected through digital marketplaces, infrastructure which you just read about. If they, whether it's digital infrastructure or physical infrastructure, roads and bridges, all these things can go hand in hand in, once Assam being the kind of state that it is, if it does well, then it will have a sort of effect on all the other sisters in the Northeast. So it's very, very important that, and it's also how well it gets linked with the other states, the larger states, which are more, shall I say, mainline kind of states. If they get more economically integrated through better infrastructure and connectivity, then you will find a win-win sort of situation coming up. So इस तरह के जो मीट्स होते हैं या स्टार्टअप डे होता है, इससे इन्वेस्टर्स और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंडस्ट्री है, इन्वेस्टमेंट आने में भी मदद मिलती है, बिकॉज दैट इज वन मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. देखिए, फॉरेन तो आती नहीं है,
मतलब वो लोग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करेंगे, बोलेंगे, बट क्या होता है कि आप अगर डायलॉग में रहते हैं, नेटवर्किंग रहती है और डायलॉग में रहते हैं, तो क्या होता है कि आपको इंफॉर्मेशन दे देते हैं जिससे अपॉर्चुनिटी कब आ जाए आपको मालूम नहीं है। आइए अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। पहले एशियाई और यूरोपीय बाजार। 5 प्रमुख एशियाई बाजारों में से 4 आज गिरावट पर बंद हुए। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक और चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक दोनों में 0.43% की गिरावट आई। जापान का निकेई 0.08% की मामूली गिरावट पर बंद हुआ और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। हालांकि हांगकांग का हैंगसेंग आज 0.34% की वृद्धि पर बंद हुआ। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां के प्रमुख सूचकांक में बढ़त का रुख था। ताजा समाचार मिलने तक जर्मनी का डैक्स 0.8% की बढ़त पर था। लंदन के फुटसी में 0.7% से अधिक वृद्धि थी और फ्रांस का कैक लगभग 0.5% की तेजी पर था। US stocks displayed mixed trend yesterday. The Dow Jones Industrial Average advanced over 0.5% and S&P 500 gained 0.11%. Meanwhile, Nasdaq Composite fell 0.23%. Earlier, Labor Department report that showed the U.S. Producer Price Index rose less than expected in December. The Producer Price Index for final demand rose 0.2% last month after an unrevised 0.4% advance in November. और Oil prices, we were talking about, Sonu, oil prices rose today as the market focused on potential supply disruptions from sanctions on Russian tankers. Brent crude was trading at $80.18 per barrel, gaining over 0.3%. WTI crude also added over 0.4% to trade at around $77.85 per barrel, according to the latest reports. Udayan, what do you see, in your view, are the implications of U.S. sanctions imposed on Russian tankers, especially in context of the Indian economy? Well, I think most experts are speculating, or they are of the opinion that probably those discounts will vanish, access will probably become lesser. So that does put in a little bit of, theoretically, in theory, it does put in a little bit of pressure on oil prices for us, the price at which we are buying. But still, this is not a large-scale disruptions. You can get discounts from other players as well. If you have good sort of international diplomatic work going on, then some of the other problem areas, if there are solutions out there, then the prices can come down a little bit. If there is other economies, large economies, if they are going soft, at the moment France and Germany are going soft in terms of economic growth, then that also, keeps the lid on the prices, so the runaway thing doesn't happen. But do you see a cascading effect of this on the retail buyer? Well, the pressure is going to be there. Absolutely. Because every time the rupee is under pressure, right, your import bill is actually automatically going up. So it and you don't have to. You just have to look at all such instances, and it's almost 100% correlation. Right. So there's a linkage out there. So it will be under pressure, but these things don't last forever. When you if the oil prices go up, more suppliers will come in, and the adjustment will happen. So markets operate like that. So it's going to be a dynamic situation. Yes, not it's just going to be. Yeah. Up and up. So trend. if the prices go up, more shale supply will come in, more Absolutely. pumping will happen. आइए अब चलते हैं सराफा बाजार की ओर। सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.51% बढ़कर 78,850 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 0.62% बढ़कर 91,280 रुपए प्रति किलो के स्तर पर थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक फरवरी 2025 में आपूर्ति वाला सोने का वायदा मूल्य 0.5% बढ़कर 78,550 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं मार्च 2025 में आपूर्ति वाली चांदी का वायदा मूल्य 0.67% बढ़कर 91,164 रुपए प्रति किलो पर था। समय समाप्त हो रहा है, सो हमें चर्चा को भी यही विराम देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उदयन इस बहुमूल्य जानकारी के लिए। धन्यवाद।
And listeners, before we close this edition of Market Mantra, a reminder of the headlines. India's trade deficit down to $21.94 billion in December on a monthly basis. Benchmark domestic indices end with modest gains. Sensex adds 224 points. Nifty closes above 23,200. And global crude oil prices rise. Brent crude trades at $80.18 per barrel. And that's it in today's edition of Market Mantra. Goodbye. Market Mantra, Mantra.